जी सर, अभी तो हो जाएगा। जी अच्छा, बोले नहीं तब से। आइए जरा देखिए, हमने सेक्शन 24-25 पढ़ा कल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन at the time of the dissolution of the marriage and at the time of the passing of the decree of divorce by the court. If there are children between the spouses, to whom the custody is to be given. If child is a minor, minor child है तो custody किसको दी जाए? Whether wife is entitled to get a custody of a minor child, whether a husband is entitled to get a custody of a minor child, तो किसको दी जाएगी, कब दी जाएगी? तो जरा सेक्शन 26 बताइए। Section 26, Custody of Children. In any proceeding under this Act, the court may, from time to time, pass such interim orders and make such provisions in the decree as it may deem just and proper with respect to the custody, maintenance, and education of minor children, consistently with their wishes, wherever possible, and may, after the decree, upon application by petition for the purpose, make from time to time all such orders and provisions with respect to the custody, maintenance, and education of such children as might have been made by such decree or interim orders, in case the proceeding for obtaining such decree were still pending, and the court may also from time to time revoke, suspend, or vary any such orders and provisions previously made. ठीक है, अगर कोर्ट को जो है लगता है कि एट द टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ अ डिक्री ऑफ द डिवोर्स और वेयर द कोर्ट इज डिसॉल्विंग द marriage, then the custody of the children shall be given accordingly either to wife or the husband as per the wishes of the children. अंडरलाइन करिएगा, लिखा हुआ है as per the wishes of the children. चिल्ड्रन की विशेष से किया जाएगा, किस पर्पज से दिया जाएगा? Whether the custody which has been given to the either of the parent of the marriage, whether they are maintaining properly to the children, क्या वो चिल्ड्रन को properly maintain कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहला ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड है एजुकेशन ऑफ द माइनर at the time of the passing an order for the custody of the children. The court must consider the following element. Number 1, the education of the children. दिमाग में रखेगी एजुकेशन। दूसरा होगा देयर विशेस, किसके साथ जाना चाहते हैं? मम्मा के साथ जाना चाहते हैं कि पापा के साथ जाना चाहते हैं? तीसरा मेंटेनेंस ऑफ द चिल्ड्रन। और लास्ट, at the time of the passing of the order of the custody of the children, the court shall give the custody of the children to either of the parent, where the court is considered the paramount consideration of the children. चिल्ड्रन के हित में कौन बेहतर है? paramount consideration. The court shall take the paramount consideration. paramount consideration किस चाइल्ड के लिए, किस चिल्ड्रन को जो है पेरेंट, कौन से पेरेंट्स को देना है, देखेंगे वो किसको बेहतर लगता है। What shall be the paramount consideration? क्लियर है? लिखिए, इन सरिता शर्मा वर्सेस सुशीला शर्मा, सरिता शर्मा वर्सेस सुशीला शर्मा. In this case, court has held that. In this case, court has held that. In granting the custody of the children to the parent, in granting the custody of the children to the parent, welfare of the children, welfare of the children,
इज अ पैरामाउंट कंसिडरेशन। देखिए कि किसके वेलफेयर में है, किस किस पेरेंट को देके वेलफेयर होता है चिल्ड्रन का। क्लियर? सर केस नेम बोल दीजिएगा एक सरिता बार। सरिता शर्मा वर्सेस सुशील शर्मा। सरिता शर्मा वर्सेस सुशील शर्मा, वेयर वर यू? हु हैज ज्वाइन राइट नाउ? नेक्स्ट आ जाइए, कोई बात नहीं। अब आइए नेक्स्ट 28 पढ़िए। Section 28. Appeals from decrees and orders. अपील फ्रॉम डिक्रीज एंड ऑर्डर। आपने कहा कि अपील्स, डिक्रीज और ऑर्डर, अगर कोई अपील करनी है तो कितने दिनों के अंदर की जाएगी? क्लॉज 4 पढ़िए जरा। Clause 4. Every appeal under this section shall be preferred within a period of 90 days from the date of the decree or order. पूछा जाता है जनरली, जब हमने सेक्शन 15 में बताया कि अपील का टाइम कितना है, वहां कितना लिखा हुआ है? 30 डेज। लेकिन कह रहा है कि अंडर दिस सेक्शन द अपील शैल बी प्रीफर्ड विद इन 30 डेज। समझ गए आप? चलिए अब आ यहाँ जाइए जरा नेक्स्ट। जी 90 डेज। अच्छा 28A भी पूछा गया है प्री में। इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, प्री में, एलएलएम में, पीएचडी के एंट्रेंस में ये पूछे गए, नेट में पूछे गए। इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्रीज एंड ऑर्डर्स 28A। अभी तो 29 क्लॉज 2 भी पूछा गया है रिसेंटली। 29 पढ़िए लास्ट। Section 29. Savings. जी Subsection 1. A marriage solemnized between Hindus before the commencement of this Act, which is otherwise valid, shall not be deemed to be invalid or ever to have been invalid by reason only of the fact that the parties thereto belonged to the same Gotra or Pravara or belonged to different religions, castes, or subdivisions of the same caste. समझे? वो कह रहा है कि अगर कोई शादी जो है इस एक्ट के पास होने से पहले हुई थी, और वो शादी जो है सेम गोत्र में हुई थी, सेम परंपरा में हुई थी, और सेम डिफरेंट रिलीजन था। पहले क्या था कि ब्राह्मण ब्राह्मण से करेंगे और लोअर कास्ट से करेंगे, कास्ट सिस्टम था हमारे यहाँ। लेकिन उसको रिमूव किया गया 1955 के एक्ट से, और कहा कोई भी किसी से भी हिंदू होना चाहिए, बस शादी कर सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई शादी हुई थी तो वो शादी जो है इस एक्ट के आने के बाद वर्ड नहीं होगी, इनवैलिड नहीं होगी, वैलिड ही रहेगी। इसी सेक्शन को कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड। डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड क्लॉज 2। Clause 2. Nothing contained in this Act shall be deemed to affect any right recognized by custom or conferred by any special enactment to obtain the dissolution of a Hindu marriage, whether solemnized before or after the commencement of the Act. कहा गया है कि सेक्शन 13 में डिवोर्स का प्रोविजन दिया गया, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दी गई है बाय द कोर्ट। कहा, पूछा कि वेदर वेयर एनी पर्सन हु आर गवर्न बाय एनी पर्टिकुलर कस्टम और यूसेज, पर्टिकुलर कस्टम और यूसेज से गवर्न होते हैं, तो कौन सी क्लॉज में दिया गया है? 29 की। 29 की कौन सी क्लॉज में है? बताएंगे आप मुझे कौन सी में है? सेक्शन 2। Clause 29 2. क्लॉज 2। क्लॉज 2। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाइए क्लॉज 4।
Clause 4. Nothing contained in this Act shall be deemed to affect the provisions contained in the Special Marriage Act 1954 with respect to marriages between Hindus solemnized under that Act, whether before or after the commencement of this Act. कोई आदमी जो है हिंदू और नॉन हिंदू जो है नॉन हिंदू दोनों शादी करना चाहते हैं, सेक्शन 5 में शादी कर सकते हैं वो? एसेंशियल कंडीशन मैच हो रही है वहां? नो सर। No. नहीं, तो कहाँ जाए वो? उनको क्या है रास्ता? Special Marriage Act. चलिए स्पेशल मैरिज Special एक्ट Marriage Act. 1954। यहाँ आ जाइए। अच्छा, ये सेविंग्स का मतलब क्या होता है? ये मैं समझ नहीं पाया आज तक। इसका क्या मतलब होता है भाई? पागल बना दिया भाई मेरा, मुझे समझ ही नहीं आती ये बात। Exception. एक्सेप्शन एक्सेप्शन की तरह काम करता है ना ये सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब होता है सेविंग ऑफ द लॉज। पुराने जो लॉ हिंदू लॉ के ऊपर कुछ चीजों का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। इस एक्ट के प्रोविजन के ऊपर कुछ लॉज को ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। वो कौन कौन से लॉज है? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई शादी जो है किसी सेम गोत्र में की गई थी, परवरा में की गई थी या डिफरेंट सेक्ट्स में की गई थी, तो वो शादी इनवैलिड नहीं होगी। वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेंगे इस एक्ट के ऊपर। अभी फिर कहा गया अगर वो किसी कस्टम और यूसेज में की गई थी, वो भी ओवरराइडिंग इफेक्ट है। और अगर कोई पर्सन किसी शादी को जो है वो हिंदू नहीं है और शादी करना चाहते हैं, तो दीज आर ऑल्सो दे कैन गेट मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। क्लियर है? Yes. चलिए, हैप्पी एंडिंग ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट की हैप्पी एंडिंग। अब हम पढ़ते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1950 क्या है बताइए? 6. 1956। 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। देखिए, हमारे यहाँ जो था 1956 से पहले अगर हम बात करें, 1956 की बात करें ऑनवर्ड्स 1956, तो हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी का मामला था, देखिए सक्सेशन का मतलब होता है कि अच्छा, इस सक्सेशन का मतलब क्या है यहाँ? हिंदू सक्सेशन एक्ट मतलब कि हु विल गोइंग टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी। ये ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी की बात करेगा कि सेपरेट प्रॉपर्टी की बात करेगा? किसकी बात होगी? व्हाट प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट इज गोइंग टू डील? कौन सी प्रॉपर्टीज है भाई, बताएं मुझे। देखिए, देर आर टू स्कूल्स इंडिया में, टू स्कूल्स हैं। वन इज मिताक्षरा, अनदर इज दया भागा। यस नो? Yes, sir. The concept of the Mitakshara applied in all over the India except the state of West Bengal. The state of West Bengal is governed by the दया भागा। दया भागा के द्वारा उनको गवर्न किया जाता है। दो स्कूल है, दोनों के प्रिंसिपल्स हैं। अब दोनों में जो डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी होगा, जो सक्सेशन होगा, वो कैसे होगा, किस तरीके से सक्सेशन होगा? बंगाल वाले those who are under the purview of, or those who are governed by the दया भागा स्कूल, उनके यहाँ डिवोल्यूशन कैसे होगा प्रॉपर्टीज का? इधर बाय सर्वाइवरशिप और बाय सक्सेशन।
मिताक्षरा में कैसे होगा, सर्वाइवरशिप से होगा कि सक्सेशन से होगा, तो ये सब चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है। अच्छा यहाँ एक बात बता दें, आप यहाँ बोल भी नहीं पा रहे हैं, इतने समझ रहे हैं आप हमारी बात क्या है ये मुझे भी नहीं पता, बोल क्यों नहीं पा रहे हैं आप। अभी कितने स्कूल है हमारे यहाँ? 2 स्कूल है सर। दो 2 स्कूल, मिताक्षरा और दया दया भागा। भाभी। प्रॉपर्टी की जो बात करेंगे, दोनों प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी, जो प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी, वो कौन करेगा? अंडर दया भागा क्या डिफरेंस है, मिताक्षरा क्या डिफरेंस है? तो याद रखिएगा, मिताक्षरा द प्रॉपर्टी शैल बी डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द कंसेग्युनिटी, नियरनेस ऑफ द ब्लड रिलेशन। कंसेग्युनिटी के आधार पर मिताक्षरा स्कूल की प्रॉपर्टी की को जो है गवर्न किया जाएगा, नियरनेस ऑफ द ब्लड रिलेशन। जबकि दया भागा में अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस इफिकेसी, स्पिरिचुअलनेस। कोग्नेट शैल प्रिवेल ओवर द एग्नेट, कोग्नेट एग्नेट पर ओवरराइड करेंगे। जबकि मिताक्षरा स्कूल में जो है नियरनेस ऑफ ब्लड रिलेशन होगा। ठीक है, क्लियर है? Yes. ठीक है, तो अब मिताक्षरा स्कूल के अंडर ही एक कंसेप्ट आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। दोनों स्कूलों में है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। व्हाट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली? ज्वाइंट हिंदू फैमिली किसे कहते हैं, बताइए कोई मुझे। व्हाट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली? जिसमें माता पिता, उसके बच्चे, चाचा चाची सभी लोग एक साथ रहते हैं। बहुत सही। क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द हिंदू ज्वाइंट फैमिली कंसिस्ट द कॉमन एंसेस्टर्स इंक्लूडिंग lineal descendants with wife और डॉटर, विडोज, ये सब इंक्लूड होते हैं। हिंदू ज्वाइंट फैमिली दोनों में अप्लाई होता है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट, मिताक्षरा में भी और दया भागा में भी। तो लिखिए जल्दी से, अ हिंदू ज्वाइंट फैमिली इज फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ हिंदूज, according to Mitakshara law. According to Mitakshara law, Hindu joint family consists of common ancestor and all his lineal male descendants up to any generation together with wife, widow and unmarried daughter of common ancestor and of lineal male descendant। ठीक है, देखिए हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मतलब उन्होंने कहा कि कॉमन एंसेस्टर, सभी लीनियल मेल डिसेंडेंट ऑफ द कॉमन एंसेस्टर, उनकी वाइफ, उनकी विडोज
उनकी डॉटर्स और जितने भी लीनियल मेल डिसेंडेंट होंगे, दी ऑल दीज फॉर्म्स दी हिंदू ज्वाइंट फैमिली। ये हिंदू ज्वाइंट फैमिली है और इनके द्वारा जो प्रॉपर्टी ऑक्युपाई की जाती है दैट इज नोन एज दी हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। यस नो, ये बताइए मुझे, थोड़ा सा समझ आया कि नहीं आया? जी जी, Yes. कोई क्वेश्चन? चलिए सर जी, सर थोड़ा हिंदू जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ कॉमन एंसेस्टर के बाद थोड़ा 2 लाइन रिपीट कर दीजिए। करिए भाई, कोई वैभवी कीजिए, जी सर. कीजिए जरा। So, according to the Mitakshara school, common ancestors and all his lineal male descendants con- so कंसिस्ट आगे ऑफ का दो वर्ड consisting of like कॉमन एंसेस्टर एंड all his lineal male descendant up to any generation together with wives or widow and unmarried daughter of common ancestor and all lineal male descendant। थैंक यू सर। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए अब हाउ द प्रॉपर्टी विल बी डिवॉल्व। अगर जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली के पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, कैसे उस प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होगा, समझ रहे हैं आप अभी ये सारी प्रॉपर्टी है, इन सब के पास कॉमन एंसेस्टर है, उनके उनके ऑल मेल लीनियल डिसेंडेंट्स हैं, उनकी वाइफ है, उनकी विडो है, उनकी डॉटर है, तो कैसे होगा? तो देर आर टू मोड्स ऑफ द डिवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी। टू मोड्स थे, क्या क्या थे? मिताक्षरा स्कूल में टू मोड्स थे प्रॉपर्टी को डिवॉल्व करने के, प्रॉपर्टी को पार्टिसिपेट का पार्टीशन करने के लिए। क्या वो टू वे थे? नंबर 1 बाय सर्वाइवरशिप, सेकंड बाय सक्सेशन, सर्वाइवरशिप और सक्सेशन। अब सपोज करिए ए और बी दो भाई हैं, हिंदू ज्वाइंट फैमिली की बात हो रही है, उनकी प्रॉपर्टी है, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, डिवाइड नहीं हुई है दोनों भाइयों की। एक की डेथ हो गई, एक एक बेटी है, डॉटर। प्रॉपर्टी किसको डिवॉल्व होगी, भाई को कि डॉटर को, या दोनों को? सर ज्वाइंट फैमिली है तो दोनों। ज्वाइंट फैमिली है 9 सितंबर 2006 से पहले किसको होगी? भाई को होगी सिर्फ, ओनली भाई को। ओनली ब्रदर। ब्रदर को होगी खाली। डॉटर इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द प्रॉपर्टी। और हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, वी आर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोपासनरी प्रॉपर्टी, कोपासनर, ठीक है? तो कौन सी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी? ज्वाइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी बाय सर्वाइवरशिप।
but the concept of the survivorship has been ended by the act of 2005 है। 6 से मैंने शायद गलत बोल दिया, 5। क्लियर है बात? अब आ जाइए। अच्छा, इसको जो है वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी लिख लेना। दो तरीके की हेरिटेज होती है, जो प्रॉपर्टी होती है वो दो तरीके की होती है, ऑब्स्ट्रक्चर्ड और अनऑब्स्ट्रक्चर्ड। जहां ऑब्स्ट्रक्शन होता हो, जहां ऑब्स्ट्रक्शन ना होता हो। जो कोपास, अब आ जाइए, चलिए बस इसको यहां तक सुनिएगा, अब आगे आ जाइए जरा। अब व्हाट इज कोपासनर? कोपासनरी क्या होता है? कोपासनर, व्हाट इज कोपासनर? अभी हम बात कर रहे हैं 2005 से पहले। तो देखिए, कोपासनरी का मतलब होता था कि कोपासनरी includes the all four generation of the male member in the हिंदू ज्वाइंट फैमिली। हिंदू ज्वाइंट फैमिली के अंदर किसी एक चीज ऐसी है जिसको कोपासनरी कहते हैं। उस चीज में कोई 4 जनरेशन जो है मेल की, वो कोपासनर हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं। हाँ ना? यस सर। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर एक नाम है कोई कुपासनर। ये कुपासनर क्या है? तो कहा गया कि कुपासनरी जो है एक, इट इज अ राइट विच इज बीन ग्रांटेड बाय बर्थ टू अ मेल पर्सन अप टू अ 4th जनरेशन। 4 जनरेशन तक। सपोज करिए ABCDE, ये 4 जनरेशन है। ABCD, these are the 4 generation, they are the copartner। ABCD, E भी है, तो वेदर E इज कोपार्टनर और नॉट। ये चारों के चारों मेल हैं, ABCD और E। इनमें कौन सर कौन नहीं होगा कोपार्टनर है, कौन नहीं है? सर, ABCD को पार्टनर है, ई नहीं है। E नहीं है। क्यों नहीं है? 5th जनरेशन का आ गया, इसमें 4th तक है। 5th जनरेशन का आ गया, 4th तक है। क्लियर है बात? आर यस यू सर। ओके विद दिस? लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, वरना आपको हजम होगी नहीं बात, पता है मुझे। लिखिए, कोपार्टनरी इज अ नैरो बॉडी। कोपार्टनरी इज अ नैरो बॉडी of a person within Hindu joint family. Copartnary is a narrow body of a person within Hindu joint family who will inherit the property. Who will inherit the property? This is the Mitakshara concept of copartnary. This is the Mitakshara concept of copartnary, which is based on कौन? Which is based on, एक मिनट,
जी, क्या बोला था मैंने? Sir, this is the Mithakshara concept of copper, which is based on. Which is based on the motion of son's birthright of joint family property. Son's birthright of joint family property. It consists of father, पहली जनरेशन फादर, son, son's son, son's son, son's son's son. ये 4 जनरेशन है, फादर, सन, सन्स सन, सन्स सन्स सन. क्लियर है? यस नो? इन द कोपासनरी प्रॉपर्टी, लिखिए आगे, इन द कोपासनरी प्रॉपर्टी in the copacenary property, copacener shall have a right to demand a partition, from the holder of joint Hindu family property. क्लियर है बात? Essentials of Mitaksara Copacenary. Essential of Mitaksara Copacenary. Number 1. Copacener include male member up to 4 generation. Copacener include male member up to 4 generation. Member can demand partition. Third, each of Copacener has control over the entire property. Their ownership किन की? 4 जनरेशन की, Copaceners की. Their ownership and right of possession is common. Copacenary property. Next, Copacenary property could be discharged or alienated in case of necessity. And with the consent of other Copaceners. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. On the death of any Copacener, his share devolve on other Copacener by rule of survivorship, not by succession. देखिए, सर्वाइवरशिप का जो कंसेप्ट है, अब सुन लो, लिखना विखना हो गया बस. सर्वाइवरशिप, यहाँ जो मामला आया, जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवोल्व होगी.
तो कहा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व होगी बाय सर्वाइवरशिप, जो सर्वाइव करेगा उसको मिलेगी। सपोज कुपासनरी से पहले जो हमारा जो मामला था, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली थी, उसमें बी की एक ही डॉटर भी थी, लेकिन एक ही डॉटर को नहीं मिला था। किसको मिला था हिस्सा? किसको मिला था पूरे का पूरा? भाई को। ब्रदर को। ब्रदर को मिला। ब्रदर को। और अगर सपोज करना पार्टीशन हो गया तो, इफ पार्टीशन हैज डन, इफ द पार्टीशन हैज टेकन प्लेस, तब डॉटर को मिलता। समझ रही हैं आप? फिर ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहां रह जाती? फिर वो सक्सेशन से होता। समझ रहे हैं आप? पता नहीं यार, यस आप लोग समझ नहीं रहे दिखे। ये थोड़ा सा टेक्निकल है यार, आप लोग ये बात तो जान लो। लग रहा है टेक्निकल? सर, जी। जो आपने ये मतलब एग्जाम्पल दिया था, तो वो 1956 से पहले का आपने मतलब मतलब पोजीशन से बताया था, तो डॉटर को तब हमने भी तो मिल जाएगा पार्टीशन में? कहाँ? नहीं तब नहीं, तो नहीं मिलेगा ना 2005 के डॉटर बाद, को? 2005 2005 से 2005। पहले। जी जी जी, ठीक है सर, क्लियर हो गया। एक बात और याद रखिएगा, अंडर द मिताक्षरा लॉ ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, वेस्टिंग नेवर बी इन सस्पेंस। वेस्टिंग को कभी भी सस्पेंस में नहीं रखा जाएगा। सस्पेंस का मतलब एबियांस। अगर इफ एनी ऑफ द member of the Hindu joint family has died, the property shall be inherited by other member। अदर मेंबर के द्वारा कर लिया जाएगा। इट शैल immediately वेस्ट इन द अदर मेंबर। इट शैल नॉट बी इन एबियांस। एबियांस में नहीं रखी जा सकती वेस्टिंग को। vesting of the property in the Hindu joint family property, if in case of the death of the any of the member of the Hindu joint family property, the property shall be vested in the next member। नेक्स्ट मेंबर में वेस्ट होगी। इट शैल नॉट बी इन एबियांस, इट शैल नॉट बी इन सस्पेंस। दो, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है हु इज इन मदर वूम, अगर वो मदर की वूम में है, देन इट मे बी इन एबियांस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है या मुझे ही लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है भाई? सर थोड़ा सा है टेक्निक। सक्सेशन है, देखिए सक्सेशन में है। अच्छा, एक बात और बताइए, where any state has been vested in one person, whether it may be divested। वैसे हम इसको पढ़ाते हैं, हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसलिए शुरू में बता रहा हूं कि वहां फिर आपका इम्तिहान लूंगा। एक प्रॉपर्टी वेस्ट हो गई, एक प्रॉपर्टी ए था, 2005 के बाद की बात कर रहे हैं हम। ए था, उसकी वाइफ है, उनकी वाइफ है, वाइफ के कोई बच्चा नहीं है, शी इज नॉट प्रेग्नेंट, एक ही डेथ हो गई, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? सर वाइफ विडो को मिलेगी। विडो ने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया, तो जो राइट है, वेदर शी कैन बी डाइवेस्टेड फ्रॉम हर राइट, वेदर द adopted child shall have the right to take a partition, whether he can claim a partition, whether he is entitled to get a property or not। यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, सब चीजें हम देखेंगे अच्छे से। एडॉप्शन विल डाइवेस्ट द राइट, जो राइट था वो डाइवेस्ट हो जाता है। पढ़ते हैं हम इसको, है ना? क्लियर है बात? कैसे डिवोल्यूशन हुआ प्रॉपर्टी का? हिंदू ज्वाइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है कैसे डिवोल्व हुई है? बाय सर्वाइवरशिप। सर्वाइवरशिप खत्म हो गई है। ठीक है, तो अब जरा हम कुछ चीजें लिखते हैं। इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग टू दी कोपासनरी। कोपासनरी से रिलेटिंग हम कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा हाँ, अब जरा पहले कोपासनरी को ही हम पूरा कर देना, तभी तो आगे बढ़े। अब सपोज करिए ए है, ए के दो बेटे हैं बी और सी। ए को ऊपर बिठाइए, इनको फ्लो चार्ट बनाइए, बी और सी, ये दोनों तीनों मेल हैं, इनकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होनी है, कैसे होगी? बताएं। इसे सर समझाइएगा। ए है, ए के दो बच्चे हैं बी और सी, दोनों बेटे हैं। अब ये पार्टीशन चाहते हैं तीनों, कैसे प्रॉपर्टी मिलेगी? सर तीनों को सर बिना एक एक के डेथ हुए सर कैसे हो जाएगी सर? अभी तो प्रॉपर्टी ए का ही है सर, बी सी का क्या मतलब है अभी इसमें? हाँ, बीसी का कोई अब कुपासनर है वो, दे आर कुपासनर। बट सर ए अभी तो जिंदा है ना सर? कुपासनर है वो पार्टीशन चाहते हैं। क्या जिंदगी में पार्टीशन नहीं हो सकता? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जनाब, तो सर हो सेल्फ सकता है, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है। हो सकता है तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी का तो हो जाए। हो सकता है सर, बट होगा पर वही सर बराबर बराबर होगा तीनों लोगों को मेरे हिसाब बस से। सीधा सा बता, तीनों को बराबर बराबर मिलेगा। अब यहां सपोज करिए बी के एक सन है, एक डॉटर है, 1956 से पहला मामला है। अब सन मुझे को ही बताइए, जाएगी, सन सन को को जाएगी। मिलेगी, सन को मिलेगी सर। सन को मिलेगी। अब ये बात हुई 1956 से पहले। 1956 से लेके 2005, 9/9/2005 तक हम देख लेते हैं क्या था रूल। सपोज करिए ए है, ए के दो बच्चे हैं, एक का नाम सन है एस, एक का नाम डॉटर है डी, और उनकी एक डब्लू है वाइफ, जो विडो हो गई, ए चल बसे। अब मुझे बताइए प्रॉपर्टी कैसे डिवोल्व होगी? हाउ द प्रॉपर्टी विल डिवोल्व अमंग्स देम? सर पहले तो वाइफ को तो नहीं मिलती थी। जी सर इसमें ये होगा कि पहले प्रॉपर्टी सर वाइफ को आएगी विडो को, और उसके साथ साथ सर जो है जो वरासत होता है सर उसमें सन का भी होगा सर नाम, और अगर अविवाहित डॉटर है तो सर डॉटर का भी नाम होगा मेरे हिसाब से। कहीं मैं ये गलत? हम 1956 से 2005 से पहले की बात पूछ रहे हैं। विडो वाइफ को तो नहीं मिलती थी उस समय शायद। कौन कह रहा है नहीं मिलती थी? डॉटर को नहीं मिलती थी। देखिए क्या होगा, प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे। एक ए को मिलेगा जो मर चुका, एक डब्ल्यू को मिलेगा 1/3, और एक सन को मिलेगा 1/3। अब ये जो 1/3 है ए वाला, ये डिवोल्व करेगा तीनों में।
समझ रहे हैं आप? इसको तीनों में डिवाइड किया जाएगा। Daughter was only entitled to get the share from the deceased father. कितना? 1/9। कितना हुआ? 1/9। क्लियर है कि नहीं है? तो 3 आदमी में किसमें बटा सर? W में बटा, अच्छा, A में बटा, सन में बटा। डॉटर को नहीं मिला। अब जो 1/3 फादर का था A का, वो 1/3 फिर 3 जगह डिवाइड होगा, W में, सन में, डॉटर में। 1/3 into 3 1/9 1/9 1/9। तो अगर W की बात करें तो W को मिला 1/3 + 1/9, सन को मिला 1/3 + 1/9 और डॉटर को मिला 1/9। क्लियर है यस सर। सर ये सभी को? 1956 के बाद का सर ये रेशियो बोल रहे हैं। ये कंडीशन क्या ये मेरे अगर अविवाहित लड़की है तब या विवाहित है तो भी? अविवाहित। ये अविवाहित के लिए था 2005 से पहले, लेकिन अब नाउ आफ्टर द एक्ट ऑफ 2005 99/2005 the concept of the national partition has been ended. The concept of national partition was only in which the wife, the person and his wife and son was only entitled to inherit the property. But after passing of the act of 2005 it has now been ended. अब तीनों में इक्वल पार्टीशन होगा। अगर एक ही डेथ हो गई, इंटी स्टेट सक्सेशन होना है, क्योंकि हमारा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो इंटी स्टेट सक्सेशन की बात करता है, जिसमें कोई विल नहीं बनाई गई है, कोई वसीयत नहीं की गई है। तो उस प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन होगा, उस प्रॉपर्टी का सक्सेशन अकॉर्डिंगली होगा। कैसे होगा? अगर एक ही डेथ हो गई, उसके एक वाइफ है, एक सन है और एक डॉटर है, तो इक्वली तीनों में डिवाइड हो जाएगी। यस नो? क्लियर? सर यस ए का सर। शेयर नहीं दिया जाएगा? अब क्या हो गया? अब तो नेशनल पार्टीशन खत्म हो गया। अब क्या हुआ कि अब तो सबको इक्वल राइट हो गया। अब सर वो एक का तो उस क्लास टाइम 1 ईयर को मिलेगा उसके, अब मतलब जो इसीलिए क्लास 1 ईयर है। निकालना अभी वो बाद में बताएंगे। अच्छा, क्लास 1 ईयर अभी अगर इसी में तुम पेज फंसा दोगी तो फिर तुम अब कहोगे क्लास 1 ईयर कौन होते हैं। समझ रहे हो? तो अभी जो बात चल रही है वो बात चल रही है नहीं नहीं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है। अब हस्बैंड की तो कोई बात ही नहीं, क्यों? डॉटर को देना ही नहीं है। वो तो डॉटर को ना मिले इसीलिए तो वो किया गया था सारा तामझाम। क्लियर? बताइए। चलिए अब आ जाइए, जरा लिखिए some important points relating to the Kopasnari. Interest in the Kopasnari property. Interest in the Kopasnari property is unpredictable and fluctuating. अनप्रिडिक्टेबल एंड फ्लक्चुएटिंग। कैसे है ये अनप्रिडिक्टेबल एंड फ्लक्चुएटिंग? देखिए, अनप्रिडिक्टेबल ये है कि अब जो भी बर्थ लेगा उसका अधिकार है। समझ रहे हैं आप? फ्लक्चुएटिंग है। इफ वन डाइज, एक 4 जनरेशन होती थी, चार जनरेशन में एक चले गए तो लास्ट वाले को इन हो जाते थे। तो जो इंटरेस्ट है वो फ्लक्चुएटिंग है।
अनप्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट, in the Hindu joint family property, co-partner has a right in the property by birth. Next, every co-partner has a right of partition. Right of maintenance. अच्छा, किसको मेंटेनेंस मिलेगा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में? इलिजिटिमेट को। याद रखिएगा, बिकॉज इलिजिटिमेट को शेयर नहीं मिलता। द पर्सन हु हैज बीन born फ्रॉम द इनवैलिड मैरिज or void marriage, he shall not have the equal right as other co-partner in the co-partnering property, but he shall be entitled to get a maintenance from such property. लिखिए, the person who does not get share in co-partnering property after the partition, he shall have the person who does not get share in co-partnering property after the partition, he has a right of maintenance. Illegitimate child cannot be co-partner. co-partner नहीं हो सकता। illegitimate child हो सकता है कि नहीं? अच्छा, भी कोई से सेक्शन में हिंदू मैरिज के हमने पढ़ा था कि illegitimate child जो who has been born out of the wedlock of void और invalid marriage, उसको भी कुछ प्रॉपर्टी मिलती थी। क्या था वो, याद है केस? सिद्धप्पा वाला बिल्कुल, सेक्शन 16। रिवम्मा सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन। ठीक है, वो वही बात है। ठीक है, नो फीमेल कैन बी co-partner, but after 9/9/2005, daughter is co-partner with the son. Daughter is a co-partner with the son under section 6 of Hindu Succession Act. नेक्स्ट आइए, who is कर्ता in the joint Hindu family? What are the rights and liabilities of कर्ता? कौन कर्ता होता है, उसकी राइट एंड लाइबिलिटीज क्या होती है? बताइए, कर्ता कौन होता है? हु इज कर्ता? So the manager of the family or the कर्ता generally is a head of Hindu joint family property senior most or the male Hindu joint family who manages the affairs of the family with respect to all, whether it relates to the Hindu joint family property or to the Hindu joint family. Yes, no? yes यही होता है कर्ता कि नहीं? So my question to you, whether female can be a कर्ता or not, क्या फीमेल कर्ता हो सकती है या नहीं? हमने मेल मेंबर कहा है कर्ता होता है, यस हेड ऑफ द फैमिली।
हो सकती है। केस का नाम लिखिए, इन श्रेया विद्यार्थी वर्सेस अशोक विद्यार्थी, श्रेया विद्यार्थी वर्सेस अशोक विद्यार्थी। in this case Supreme Court has observed that female can be a manager, or कर्ता of Hindu joint family, if no male is in the family, अगर कोई मेल नहीं है फैमिली में। What are the rights of the कर्ता? कर्ता के क्या क्या राइट्स है? नंबर 1, right of alienation of the property, लिमिटेड राइट है, नहीं कर सकता, सिर्फ नेसेसिटी के ग्राउंड पे कर सकता है। हमने एसेंशियलिटी में भी पढ़ा है। यस नो? राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, right to manage the property of joint Hindu family. Third, right of representation. Fourth, power to compromise. Fifth, power to contract for debts. And last, right to receive money. ठीक है, क्लियर है? ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं भाई साहब के, ठीक है। सर्वाइवरशिप खत्म हो गया 2005 के बाद। हिंदू ज्वाइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवोल्व होगी बताइए? ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी सर्वाइवरशिप से, और जो सेपरेट प्रॉपर्टी होगी वो सक्सेशन से होगी। लिख लेना, ये बहुत दिनों के बाद समझ आती है ये टर्म, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दीजिए सर एक बार फिर से और। डिवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कैसे प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी मिताक्षरा में? तो कह रहा है कि सर्वाइवरशिप से जो प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, जब वो हिंदू, अभी कोपासनरी का कंसेप्ट नहीं है, अभी जब ज्वाइंट हिंदू फैमिली, अब इनमें जो कोपासनर है वो सब मेल होते थे पहले, तो कहा गया ये जो प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी, कोपासनरी प्रॉपर्टी जो कोपासनर्स के बीच होगी, वो सक्सेशन से होगी, पार्टीशन के बाद। सपोज अग्रवाल साहब की इनकी प्रॉपर्टी है, तो इनके बच्चे कैसे, अगर इन्होंने विल बना दी, टेस्टामेंट्री सक्सेशन कर दिया तो अलग बात है भाई, टेस्टामेंट्री विल बना दी तो अलग बात है, अदरवाइज कैसे होगी? इंटेस्टेट सक्सेशन। What is the distinction between मिताक्षरा एंड दया भागा स्कूल? लिखिएगा जल्दी जल्दी। Right of property arises in मिताक्षरा school. Right of property arises by birth. Son is a joint owner with father. Whereas in दया भागा school, right of property arises after the death of last holder. Hence, son has no birthright. In
ancestral property during life of the father. During life of the father. Next. 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 Father has restricted right. In Mitaksha school, father has restricted right of alienation, and son can claim partition. Whereas under Dayabhaga school, father has absolute right of alienation of property. Son cannot claim partition. Father has absolute right of alienation of property, whereas son cannot claim partition during lifetime. Third, interest passes after death of Karta. Interest passes after death of Karta to other member by survivorship. Whereas in Dayabhaga school, interest passes after last holder by inheritance ब्रैकेट में सक्सेशन टू heirs like widow and daughter. एज रिगार्ड टू इनहेरिटेंस क्या क्या डिफरेंस है लिखिए. द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस is based on consanguinity. consanguinity, consanguinity, that is nearness of blood relation. Whereas under Dayabhaga law, the principle of inheritance is based on spiritual efficacy. EFFICACY, that is offering of pindas. पिंड का ऑफर करना. ऑफरिंग ऑफ पिंडाज. ऑफरिंग ऑफ पिंडाज in Mitakshara law, agnates prefer to cognate. Agnate preferred to cognate, whereas in Dayabhaga law, cognate preferred to agnate. Cognates preferred to agnates. Next. मिताक्षरा वही. मिताक्षरा इज अ कमेंट्री ऑफ विजनेश्वर और दयाभागा इज अ कमेंट्री इज अ डाइजेस्ट बाय जिमुथवान. ये तो मैंने याद किया था. मिताक्षरी विजनेश्वर और दयाभागा जिमुथवान. डीजे याद कर लेना. डीजे प्री में जितनी मर्तबा आया मैंने डीजे से याद कर रखा था. दयाभागा डीजे जे जिमुथवान. विजनेश्वर तो आप अपना आप कर लेना. ठीक है.
सर विज्ञानेश्वर है वो। विज्ञानेश्वर या विजनेश्वर जो भी है। नेक्स्ट, इसमें मिताक्षरा सर और किसमें सर? हिंदू लॉ में सक्सेशन में। मिताक्षरा इज ऑर्थोडॉक्स स्कूल, दया भागा इज अ रिफॉर्मेटिव स्कूल। चलिए कल हम कुछ आगे का पार्ट देखेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हर्ष।